Hello everyone, good morning to you all. Happy Sunday morning. I know it's a holiday for you, but still I have come with a new video, right? And there is a thing like there is no holiday for someone who wants to achieve something. So today we will discuss about the post-Gupta period, and this is the last video of the ancient history series. Okay, and we have learned already from where when people were hunter-gatherers to, and today we have come up to the point when people are fighting wars. They have trying hard for गेटिंग पावर वेल्थ स्ट्रेंथ. ओके, तो हमने शुरुआत की थी जब हमें कुछ भी नहीं पता था, और आज हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ हमारे पास स्ट्रेंथ है, पावर है, टेक्नोलॉजी है, मनी है, राइट. सो today's topic is post Gupta period. Let's start post Gupta period from, that is the time period from 500 AD to 700 AD. Okay, in this video basically we'll discuss about the political status of India after the decline of Gupta Empire. Look, in my last video I have discussed about Gupta Empire, its rulers of Gupta Empire, about their status, about their administration, right? So in today's video we'll discuss political status after the decline or after the ending of Gupta Empire. Let's start. Look, after Gupta Empire the country is divided in two different पार्ट्स, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया. जो नॉर्थ इंडिया था वो अपने तरीके से वर्क कर रहा था, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अलग था, रूलर्स अलग थे, एंड लाइकवाइज इन साउथ इंडिया ऑल्सो रूलर्स अलग अलग थे और उनका एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो डिफरेंट, राइट. लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद नॉर्थ इंडिया. इन नॉर्थ इंडिया द रूलर वॉज हर्षवर्धन. हर्षवर्धन, ही वॉज द रूलर ऑफ थानेसर, एंड थानेसर इज इन हरियाणा. थानेसर कहाँ पर है? हरियाणा. और थानेसर के रूलर थे हर्षवर्धन नॉर्थ इंडिया में. हिज कैपिटल वाज कन्नौज एंड द टेन्योर दैट ही इन विच ही रूल वाज फ्रॉम 606 AD to 647 AD, right. Look, we got to know about him from different books. Like one book was हर्षचरिता. हमें इनके बारे में कुछ किताबों से पता चला है, लिटरेरी सोर्सेज से, जिसमें से पहला है हर्षचरिता. हर्षचरिता इज रिटन बाय बाणभट्ट. ये बाणभट्ट ने लिखी थी, ठीक है. और हर्षवर्धन ने खुद भी बहुत सारी बुक्स लिखी थी, लाइक रत्नावली, प्रियदर्शिका एंड नागानंद. Okay, these were the literary sources from which we got to know about the Harshvardhan. Look, he was also very powerful. ये भी बहुत ज़्यादा powerful थे, and he was the last, I can say, great Hindu emperor of India. Last Hindu emperor, great Hindu emperors में से एक थे, ठीक है. He defeated ध्रुवसेन second, द मैत्रिका रूलर ऑफ वल्लभी. इन्होंने जो है ध्रुवसेन को भी हराया था. ही डिफीटेड हिम, एंड वन इन हिज टाइम चाइनीज ट्रैवलर ज़्वानज़ांग केम इन 629 AD. इनके टाइम पे ज़्वानज़ांग आया था, जो कि एक चाइनीज ट्रैवलर था. देखो, आप हिस्ट्री में देखोगे कि अलग अलग रूलर्स के टाइम पे अलग अलग चाइनीज ट्रैवलर और सो मेनी फॉरेन ट्रैवलर्स केम टू इंडिया टू नो अबाउट द कल्चर, the tradition, about the wealth of the country, about the political status, social status, right. So during the reign of Harshvardhan, Zhuangzang came in 629 AD, and he has written a book that is called Siyuki, and in which there were so many things written about the ruler Harshvardhan, right. There is one thing more about Harshvardhan, कि ये एक फेयर अरेंज कराते थे, मेला, जिसको बोला जाता था मोक्ष परिषद. ये हर 5 साल में अरेंज कराते थे हर्षवर्धन. इसको कुंभ का मेला बोला जाता था, और ये थानेसर में ही कराया जाता था. क्लियर? सो दिस इज अबाउट हर्षवर्धन. एंड ऑन द अदर साइड इन साउथ इंडिया देयर वर 2 रूलर्स. फर्स्ट वन चालुक्यास एंड सेकेंड वन पल्लवास. 2 अलग अलग रूलर थे, चालुक्यास एंड पल्लवास. Let us first discuss about the Chalukyas. The founder was Jai Singh. Okay, किसने शुरू किया था चालुक्य डायनेस्टी को? जय सिंह ने. And one important king that we have to study about is Pulkeshin II. Pulkeshin II, and we got to know about Pulkeshin II from a whole Prashasti that was written by Ravi Kirti. देखो, कल मैंने आपको एक अहोल इसकी
प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बताया था जो हरिसेन ने लिखी थी। लाइकवाइज देयर इज वन अनदर प्रशस्ति, अहोल प्रशस्ति, जो किसने लिखी थी, रवि कीर्ति ने लिखी थी, जो कि पुलकेशन 2 के बारे में थी, राइट। एंड हिज कैपिटल वाज वातापी इन कर्नाटका। चालुक्यास की जो कैपिटल थी दैट वाज वातापी इन कर्नाटका, राइट। देन कम्स पल्लवास। द फाउंडर वाज सिंह विष्णु। इनसे फाउंडर कौन थे, सिंह विष्णु। एंड वन इम्पॉर्टेंट किंग नरसिंह वर्मन। इसमें एक इम्पॉर्टेंट किंग थे नरसिंह वर्मन। एंड ही एक्वायर्ड द टाइटल वातापी कोंडे। इन्होंने एक टाइटल एक्वायर किया था जिसको बोला जाता था वातापी कोंडे। वातापी कोंडे का मतलब होता है कि वातापी पे विजय पाने वाला, एक तरीके से वातापी को जीतने वाला। एज आई हैव टोल्ड यू, कैपिटल वाज ड्यूरिंग चालुक्यास राइट वातापी, तो he has acquired the title Vatapi Konde, and he was also called as Mahamal, great wrestler. He was a great wrestler, right? So he acquired the title Mahamal. He also built so many temples, in which the famous one was महाबलीपुरम। महाबलीपुरम का टेम्पल इन्होंने बनवाया था तमिलनाडु में, और इसको सप्त पगोड़ा भी बोला जाता है, ठीक है। महाबलीपुरम के मंदिर को सप्त पगोड़ा भी कहा जाता है। एंड हिज द कैपिटल वाज कांचीपुरम। पल्लवास की कैपिटल क्या थी, कांचीपुरम। ओके, सो यह स्टडी अब यू कैन चेक कि नॉर्थ इंडिया में हर्षवर्धन था, साउथ इंडिया में ये थे। बेसिकली साउथ इंडिया में जो ट्रेंड था वो बहुत ज़्यादा टेम्पल्स बनवाने का बहुत फेमस ट्रेंड था। इस टाइम पे आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे रूलर्स होंगे जिन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए। लाइकवाइज हर्षवर्धन की बात करें, सो ही ऑल्सो हैव डन सो मेनी थिंग्स ड्यूरिंग हिज राइम, क्लियर। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन, two new dynasties came, right? And in place of Chalukyas and Pallavas also new rulers came, or I can say new dynasties came, right? Let us now discuss about them. Two dynasties after the death of Harshvardhan came into power. First one was Gurjar Pratiharas and second one was Pals. Gurjar Pratiharas belongs to Rajasthan and Pal dynasty belongs to Bengal, right? And then after Chalukyas and Pallavas in South India, the two dynasties came, that is Rashtrakoot and Cholas. Let us discuss about them one by one. The first one was Gurjar Pratiharas. Look, the founder of the Gurjar Pratiharas was Harishchandra. हरिश्चंद्र जो थे वो इसके फाउंडर थे। और अगर हम इम्पोर्टेंट किंग की बात करें तो नागभट्ट, एंड वी केम टू नो अबाउट हिम फ्रॉम ग्वालियर इंस्क्रिप्शन। हमें इनके बारे में ग्वालियर इंस्क्रिप्शन के बारे में पता है। देखो बहुत ज़्यादा इनके बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं है। इनके टाइम पीरियड में हमें सिर्फ इतना ही जानना है कि फाउंडर कौन थे, इंपॉर्टेंट किंग थे, व्हाट दे हैव डन, क्या क्या उन्होंने किया, क्लियर। देन सेकेंड वन पाल्स, पाल डायनेस्टी। द फाउंडर वॉज गोपाल and the important king was Dharampal, and there was another one also, Krishna first. Look, Dharampal built विक्रमशिला मोनेस्ट्री। धर्मपाल ने विक्रमशिला मोनेस्ट्री बनवाई थी। और जो कृष्णा फर्स्ट थे इन्होंने एलोरा टेम्पल्स बनाए थे, एंड एलोरा टेम्पल्स इन महाराष्ट्र, राइट। महाराष्ट्र में इन्होंने एलोरा टेम्पल्स बनवाए थे। एंड द वन फेमस टेम्पल वाज कैलाश टेम्पल। और देन कम्स Rashtrakoot. Let us now discuss about South India. The important dynasty was Rashtrakoot after Chalukyas. The founder was Danti Durg, and he was famous for a yajna that is called as हिरण्यगर्भ। ये हिरण्यगर्भ एक यज्ञ करवाता था जिसमें कन्वर्ट किया जाता था नॉन क्षत्रियास को क्षत्रियास में, ठीक है। और then comes Cholas. Look, before discussing Cholas, I want to tell you one thing. At that time, in North India and South India, Kannauj was becoming an important center of trade and all, and powerful center I can say. Kannauj जो था वो बहुत powerful हो रहा था, and everybody wants its control. हर कोई यहाँ control करना चाहता था कन्नौज पे. So there was a struggle between गुर्जर प्रतिहारास, पाल्स एंड राष्ट्रकूट। इन तीनों के बीच में एक लड़ाई हो जाती है और उसको बोलते हैं ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। देखो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल जो था वो स्टार्ट किया था गुर्जर प्रतिहारास ने। गुर्जर प्रतिहारास के भी जो किंग थे, रूलर थे, वत्सराज। वत्सराज ने शुरुआत की थी ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल की। और एट द एंड
Who won the war? Battle गुर्जर प्रतिहारास, ये ही जीते थे, गुर्जर प्रतिहारास won the battle, right? You have to learn this thing कि ये किस किस के बीच में हुआ था, कब हुआ था, at the end of 8th century, और the reason behind it was कन्नौज, इसके पीछे कारण जो था वो कंट्रोल था कन्नौज पर, ठीक है। Now let us discuss about चोलास, ये बहुत ज़्यादा important थे, चोला पीरियड was very important. The founder was विजयालया, फाउंडर विजयालया था, capital was Tanjore, and then the most important thing, important kings were Raja first and Rajendra. Raja first built a temple that was called as Brihadeshwar temple. बहुत important temple है, आज भी इसकी बहुत मान्यता है, बृहदेश्वर temple की, it's very famous. Then comes Rajendra. राजेंद्र बिल्ट अ नेवी, इन्होंने एक नेवी बनाई थी एंड ही अटैक्ड ऑन श्रीलंका एंड बंगाल, इन्होंने श्रीलंका और बंगाल पे उस टाइम पे अटैक किया था और जीते भी गई थी अटैक के बाद, और इसकी जीतने की अपनी खुशी में, विक्ट्री की खुशी में इन्होंने एक टेम्पल बनवाया था, दैट वाज कॉल्ड एज गंगईकोंड चोलपुरम, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि ये जो राजा हैं ये सब है अपनी पावर शो करने के लिए, विक्ट्री शो करने के लिए टेम्पल्स बनवा रहे हैं। टेम्पल्स बनवाने का एक सबसे बड़ा रीजन इनका यही था, टू शो देयर विक्ट्री, टू शो देयर पावर, टू शो देयर वेल्थ, ठीक है। अपना पावर शो करने के लिए ही ये मंदिर बनवाते थे। ऑल्दो एक वर्शिप का साइड भी होता था, एक भक्ति का साइड भी था इनका, बट स्टिल चोलास तो मैं कहूँगी कि दे वर वेरी फेमस फॉर बिल्डिंग टेम्पल्स, बहुत ज़्यादा फेमस है ये टेम्पल्स बनवाने के लिए। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द पोस्ट गुप्ता पीरियड that we have studied about different dynasties that have ruled after Gupta Empire. Likewise we have discussed in post Mauryan period, जहाँ पर मौर्यास के बाद भी कुछ छोटे छोटे रूलर्स आ गए थे, इसी तरह गुप्तास के बाद भी ये कुछ छोटे छोटे डायनेस्टीज थी जिन्होंने रूल किया इंडिया पे। इसी तरह अब इसके बाद क्या होगा, देखो कुछ टाइम पीरियड के लिए अब लोकल लैंग्वेजेस डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, लोकल कल्चर्स डेवलप करने शुरू हो जाएंगे। ज़्यादातर जो किंग्स वगैरह होंगे वो पावर के लिए लड़ाई करने शुरू करेंगे। देखो आपको मैंने हुनास के बारे में बताया था, इन्वेजन ऑफ हुनास, ठीक है। उससे पहले हमारा ट्रेड था रोमन एम्पायर के साथ, हुनास के आने के बाद रोमन एम्पायर के साथ पूरा ट्रेड हमारा खत्म हो गया। हमें बहुत सारे एविडेंसेस हैं इसके, लाइक अरिका मेडू से हमें पता चला रोमन एम्पायर के साथ हमारा ट्रेड है, और रोमन क्लासेस, देयर आर सो मेनी थिंग्स वी हैव गॉट टू नो अबाउट दिस कि हमारा रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड था। तो अब रोमन एम्पायर के साथ जब हमारा ट्रेड खत्म हुआ तो फ्यूडल सिस्टम स्टार्ट हुआ, ठीक है। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, जिसमें सामंतवाद इसको हिंदी में बोलते हैं, और फ्यूडल्स होते हैं राजाओं के जो उनको असिस्ट करते हैं वॉर वगैरह में, जब भी कोई लड़ाई होती है तो उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और उनके बदले में उन्हें लैंड दिया जाता है, ठीक है, और पेमेंट मिलती है। तो इसी तरह जो पॉलिटिकल स्टेटस था, सोशल स्टेटस था इंडिया का, अब वो धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई थी, जहाँ पर लोग सिर्फ हंटर गैदर्स थे, और आज वो पहुँच चुके हैं कहाँ पर, जहाँ उन्होंने ये सीख लिया कि किस तरीके से पावर, पैसा, वेल्थ और स्टेटस, इन सब के पीछे हैं वो। अब मिडिवल हिस्ट्री में आप यही देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो लोग होंगे, जो लड़ाइयाँ होंगी, वॉर्स होंगे, वॉर बैटल्स होंगे, वो वेल्थ को लेके, पावर को लेके ही होंगी, ठीक है। वी हैव टू डिस्कस इट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। If you have any kind of doubt, you can ask me. If you like the video, give it a hit, share and subscribe. Thank you for watching.